It's a group of ancient temples which is located on the Almora-Pithoragarh route. The group of temples is located next to a rivulet and it offers beautiful views. It is recommended that somebody who is going towards that group of temples goes in the first half of the day because वहाँ पे धूप केवल फर्स्ट हाफ में ही आती है एंड इट्स इन द सन शेडो एरिया, सो ठंड काफ़ी बढ़ जाती है. As per tradition, pilgrims need to worship the gods in the temples inside Jageshwar Dham complex in a particular order. After the ritual bath at Brahmakund, which you can see, the pilgrim should first visit the main temple, followed by the other temples, and then should again go back to the main temple, followed by a visit to temples near the Brahmakund. Coming back to the geographical parameters, the Jageshwar Dham is located in Almora district of Uttarakhand state in India. It is accessible by road from Almora, which is at a distance of around 100 kilometers from Haldwani. Haldwani is well connected by train and road to Delhi and Dehradun, which is the capital of Uttarakhand state. Speaking about the temple complex, Jageshwar Dham is one of the biggest group of temples located in a single complex in the world. It has more than 125 big and small temples within its complex. The temple complex is named after the presiding deity, Jageshwar, which is dedicated to Lord Shiva. There are around 125 temples inside the complex and 174 sculptures, including stone idols of Lord Shiva and Parvati, adorned intricately with jewels. It includes the main temple Jagannath, which is the Jyotirlinga, Mrityunjay temple, Hanuman temple, Surya temple, Neelkant temple, temple dedicated to the 9 planets, that is Navgrahas, Pushti Mata temple, Lakulisa temple, Kedarnath temple, Nav Durga temple, Batuk Bhairav temple, and many more. As I was telling, the worship traditionally needs to be done in a particular order. Jageshwar Dham is considered as a heritage site under the Archaeological Survey of India, and the ASI have also set up a museum near the temple. दाजू काफल कैसे दिए? काफल 50 रुपए गिलास है, 200 रुपए किलो है सर। अच्छा, हाँ जी। कब के तोड़े हुए ठहरे? काफल आज के ही हैं सर। आज के हैं? एक्चुअली क्या होता है, धूप की वजह से हो जा रहा है ना,
बोतल में क्या है? बोतल में मट्ठा है मैडम, छाछ है, भैंस की छाछ। कितना चल जाएंगे? ये 50 रुपीज़ लीटर है, 20 रुपये गिलास है। कितना चल जाएंगे काफल? काफल आज ले गए तो कितना दिन चल जाएंगे? काफल तो आगे को कहाँ खाने के लिए ये होता है सर, खाने के जितना जाएंगे। मतलब ये कल already पके हुए हैं, कल ज़्यादा तक चल जाएंगे? ज़्यादा कच्चे में मंगाए होते हैं वो अलग है। अच्छा, कल तक चल जाएंगे? हाँ कल तक का चलेंगे। कौन सा स्कूल है आपका? GIC पनवेल वाला। और कितना दूर जाते हैं आप पैदल चल के घर? 3 किलोमीटर आने जाना या 3 जाना 3 आना? 3 जाना 3 आना। इतना दूर? कितने बजे से स्टार्ट होता है स्कूल? स्कूल 7:30 चलो बेटा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर अल्मोड़ा में हूँ। अल्मोड़ा विच इज़ लोकेटेड इन द कुमाऊं रीजन, इट इज़ नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ दिस रीजन। इस जगह को वेरियस लोगों ने विज़िट किया है पास्ट में। नोटेबल वंस आर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। In fact, it is also said that Sir Ronald Ross, who discovered the parasite of malaria, he was also born here. मेरे पीछे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि this place Almora is situated on a horseshoe shaped saddle, and this is approximately a 5 kilometer long ridge which can be seen. A part of the city is visible from here. यहाँ से आप लोग कुमाऊं के कई जगहों के लिए जा सकते हैं। पिथौरागढ़, मुंशियारी, धारचूला and then Champawat. This area is Pandey Khola, and this portion is the other side of the horseshoe ridge. So this represents the other part of Almora. तो अभी क्या है कि हम लोग यहाँ पे 2-3 जगह पे जाएंगे। This morning we have gone to Jageshwar, and next we are going to some place which could be called as an amalgamation of the old Almora with the new one. Cafe 01 gets its name from the code 01, the RTO code, which is for Almora. While moving towards Cafe 01, we saw this jacaranda tree, which is an ornamental plant. It is one of the marking features of the Kumaon region, which was introduced by the British. तो अल्मोड़ा इज़ फेमस फॉर समथिंग। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं, कुत्ते हैं और बंदर हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। हर जगह आपको ये सीमिंगली अनसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल्स क्लियर करने होते हैं। एंड वी आर गोइंग टू गो टू अनदर सेट ऑफ स्टेयर्स जस्ट नाउ। अभी तो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं जो चढ़नी है। अब हम लोग जिस एरिया से जा रहे हैं उसको LR शाह रोड कहा जाता है, जो कि अल्मोड़ा के काफ़ी फेमस नंदा देवी टेम्पल और लाला बाज़ार की तरफ जाता है। अल्मोड़ा के हिस्से में सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तो खैर आफत आ गई, लेकिन फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन कैफे 01। मैं अपने सामने विनय जी के साथ में खड़ा हूँ, एंड एज आई टोल्ड यू अ फ्यू मिनट्स बैक, ये ऐसी जगह है जिसको कि बोला जा सकता है द लोकेशन विच इज़ न्यू अल्मोड़ा विद इन द ओल्ड अल्मोड़ा। सो एज आई कुड थिंक ऑफ, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो LR शाह रोड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एरियाज। और यहाँ पे एक कैफ़े का खुलना, जहाँ पे कि यंगस्टर्स का फुटफॉल हो, वो अपने आप में एक न्यू लोकेशन जो कि पुराने अल्मोड़ा में स्थापित की गई है, उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है।
So, Vinay ji, I welcome you to the blog. Thank you. And I would request you to give us a tour. मेरा नाम विनय है और हमने और मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड है मुकुल बिलवाल, हम दोनों ने मिलकर ये कैफ़े शुरू किया था 2021 में। ये कैफ़े शुरू करने का जो रीज़न था वो ये था कि अल्मोड़ा शहर को एक ऐसे कैफ़े से कराना जो लोग बाहर जाके एक्सपीरियंस करते हैं, तो वही चीज़ हमारा मोटो रहा है इस कैफ़े खोलने में। आपको मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे आप एंट्री कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि जो ये हमने बाहर की वॉल पेंट करी है, ये एग्जैक्टली जैसे हम पुराने घरों में देखते थे इस तरह का उनका वुडन इसमें कार्विंग होती थी, बिल्कुल इसी तरह का हमने रेप्लिका बनाने की कोशिश की। आइए मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ। तो आप जैसे आप अंदर आते हैं तो आप देखेंगे कि हमने एक्चुअली इस पूरे कैफ़े को 2 तरीके से बनाया गया है। एक आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि हमने पूरा एक कुमाऊनी कल्चर को एक वॉल में बना के रखा हुआ है। बेसिकली एक वॉल हमने ये सिर्फ कुमाऊँ कल्चर को दिखाने के लिए बनाई हुई है। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे पुराने मतलब घर होते थे, पुराने गांव के घर होते थे, उनमें कैसे लकड़ी में कारीगरी और लकड़ी में कार्विंग से खिड़कियाँ बनी जाती थी। और जो औरतों ने पहना है वो एक ट्रेडिशनल कुमाऊनी आउटफिट है, उसको कहते हैं मुर्गी का पिछौड़ा। हाँ, पिछौड़ा कहते हैं, इन्होंने नस पहनी है। और ये एक बल्कि एक रेप्लिका है जिस तरह से हमारे कुमाऊँ में कल्चर को सेलिब्रेट करा जाता है। उसी से आगे आप देखेंगे छोलिया डांस बेसिकली यहाँ पर एक कुमाऊनी कल्चरल डांस है जो हम अच्छे फेस्टिवल में, शादियों में लोग करते हैं। और उसके पीछे जो आप बैकग्राउंड में देखेंगे ये नंदा देवी मंदिर का एक इमेज है जो यहाँ से 5 मिनट दूरी में ही है, ठीक है। तो ये कि रेप्लिका है बेसिकली कुमाऊनी कल्चर के लिए, जैसे हमने बनाने की कोशिश करी है यहाँ पर। और आप दूसरी तरफ जब देखेंगे अपनी राइट हैंड साइड में देखेंगे, ये बेसिकली मॉडर्न कल्चर, जैसे कि आजकल के यंग जनरेशन पसंद करते हैं, एक विंग्स है, लोग उड़ना चाहते हैं, उस तरह का एक हमने रेप्लिका बनाने के लिए मॉडर्न आर्ट है, ताकि लोग यहाँ पर आके सेल्फीज ले सकें, एक मेमोरी कैप्चर कर सकें। तो उस तरह का हमने रेप्लिका बनाने की कोशिश करी है। So I think I was not wrong in saying yesterday to one of my friends that I would be taking you to a place which is an amalgamation of the modernity versus tradition. बिल्कुल बड़ा अच्छा सा मतलब व्यू है, जैसा आपने, मुझे लगता है शायद ये लाला बाजार का ही एरिया को बिल्कुल आप। और ये मुझे लगता है पिथौरागढ़ मुंशियारी के एरिया को बड़े अच्छे से पोर्ट्रे कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह का हमने कोशिश करी है इसको एक अपने बड़े से कैनवस में बनाने की। और आगे भी काफ़ी कुछ है देखने के लिए, तो आगे चलते हैं। आप जब देखेंगे हमने जो बेसिकली जो यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, हमने जो सेटिंग करी हुई है, ये बहुत ओपन सेटिंग है। इसमें लोग को अपना एक प्राइवेट स्पेस मिलता है। हमारा बेसिक कंसेप्ट ये भी था, जैसे बाहर हम मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं कि लोग को अपना स्पेस पसंद है, लोग मतलब काफ़ी कंजेस्टेड सिटिंग ना हो, तो लोग खुल के अपनी तरफ बैठ सकें, अपना टाइम स्पेंड कर सकें फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। उस तरह से आप खुले एरिया में बैठ सकते हैं। अब आगे आएंगे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप कुछ बहुत अच्छा सा व्यू मिलता है, स्पेशली शाम को जब हमको यहाँ पर सनसेट का सामने ही व्यू मिल जाता है, सनसेट जो है सामने आता है। इस कैफे में हमारा एक कंसेप्ट रहा है हमेशा कि हम लोगों को आफ्टर कोविड एक चीज़ की बड़ी हमेशा एक डर बैठा रहा है कि हम जो खा रहे हैं उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी मीन्स जो हम खा रहे हैं वो चीज़ साफ़ सुथरे ढंग से बनी हो, वो उसमें कोई हाइजीन का पूरा ख्याल रखा हो। तो हमने क्या किया है, हमने अपना किचन ओपन रखा। तो उसमें क्या है कि किचन जो है हमारा खुला है, अगर कोई कस्टमर आ रहा है वो देख सकता है कि उसका खाना किस तरह से बन रहा है, कैसा हाइजीन का इस्तेमाल किया गया है। हमारे सारे जितने भी शेफ़ हैं वो हमेशा कैप पहन के रहते हैं ताकि आपको कुछ और एरिया को हमें तो क्लीन रखते हैं, यूटेंसिल्स हमारे क्लीन रहते हैं। इस वजह से ये रहता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है खाने में कि आप जो खा रहे हैं
साफ सुथरे ढंग से बनाते हैं, तो हमारा हमेशा एक मोटो रहा है। We just had a tour of your cafe, and I must say that I am very much impressed. Especially being an old customer, I might call myself a loyal one too. क्योंकि मेरी कोशिश रहती है जब मैं अधोड़ा में आऊँ तो एक बार यहाँ पे कैफे में जरूर विजिट। फॉर द व्यूवर्स आई वुड लाइक टू से विनय जी तो हमारे साथ में थे और हमें मुकुल जी ने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो दे आर वन ऑफ द, और रादर दे आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस कैफे। यहाँ पे जनरली शाम के टाइम बहुत ज़्यादा फुटफॉल रहता है एंड यंगस्टर्स काफ़ी थ्रॉन्ग करते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पार्टीज हैपनिंग हियर। इनफैक्ट द एटमॉस्फेयर विच इज़ देयर, जो यहाँ पे फ्लैग्स लगे हैं वो सब डेकोरेशंस किए हैं, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस जो कि क्राउड को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करता है। सो गोइंग फॉरवर्ड मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा था कि हाउ डिड दिस आइडिया ऑफ स्टार्टिंग कैफे 01 germinate in your minds? How did this all begin? स्टार्ट तो ऑनेस्टली कोविड के टाइम पे ही। हम लोग काफ़ी समय से नौकरी कर रहे हैं, 12-13 साल हम लोगों ने कंटिन्यूस नौकरी कर रही है, 12-13 घंटे 14-14 घंटे स्ट्रेच काम किया है, 6-6 दिन काम किया है, वीक ऑफ मिलता है, फिर काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से। तो हमें सब कुछ पता था कैसे करना। तो एक वो मोमेंट आता है ना किसी की लाइफ में, जब आपको लगता है यार जब आप इतनी मेहनत किसी और के लिए कर सकते हो तो आप खुद के लिए क्यों नहीं करते। वो मोमेंट ने फिर हमें चेंज करा। तो हम लोगों ने आपस में आइडिया शेयर किया कि हम लोग बचपन से ही साथ में स्कूलिंग भी साथ करी थी, फिर जॉब भी साथ किया, तो दिमाग में आया कि इतना यार किसी और को करके देना ये इससे बढ़िया है अपने लिए खुद करेंगे तो शायद आगे के लिए बहुत अच्छा है। और मेरी कुछ सिटी को भी ऑफर कर पाएंगे जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो बस वहीं से एक आइडिया स्पार्क आया एकदम, तो बात करते रहे बढ़ते रहे आगे, तो 1 से 2 आइडिया, 2 से 3 आइडिया हुआ, ऐसे ऐसे करके फिर हम आए शहर पहुँचे। तब हमने रिज़ाइन नहीं किया था, हम शहर आए, शहर में हमने प्रॉपर्टी वगैरह सर्च करी, तो हमें प्रॉपर्टी दिखी। बाकी चाहते हम रोड हेड पे थे, लेकिन कसार जाना हमारा कभी भी प्लान नहीं था, बिकॉज हम सिटी को ऑफर करना चाहते थे कुछ एक अच्छा प्लेस। कसार में तो सभी देखते हैं, लेकिन हर कोई पैदल यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता। कोई फैमिली है, कुछ बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है किसी के पास गाड़ी है। तो हमारा स्टार्टिंग से यही था कि हम जो भी देंगे शहर को देंगे, बाहर नहीं देंगे। तो हमने कभी भी टारगेट, हमारा प्राइमरी टारगेट यहाँ के लोकलाइट्स ही रहे। हमने कभी भी बाहर के लोगों को प्राइमरी नहीं बनाया, वो सेकेंडरी रहेगी कि हम शहर के लिए जाते हैं, क्योंकि हम इसी शहर में पले बड़े, जैसा मैं हमने कहा हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते थे, तो हम कुछ बेहतर देना चाहते थे। तो वही सारा दिमाग लगा के हमने अच्छा से। So that is one of the most appealing features about this place is that हमने ट्रेडिशन और मॉडर्निटी तो देख लिया, साथ ही साथ में if I go back to the name of the place, तो वो कैफे 01, that means if I am not wrong, it was the ideal code for us, isn't it? So that is probably one of the reasons कि शायद मैंने भी बाइक यहाँ से परचेज की थी। I wanted to have 01, and the 01 thing is very appealing, I guess. Okay, so now that you told us about this and how this all began, going forward, what would be your plans? Expansion in terms of number of chains, or whether in terms of working hours that you are currently having the cafe open for? So, what would be the future plans? फ्यूचर प्लान्स एक्सपेंशन में फॉर श्योर हर एक बिजनेस में जब आप कुछ अच्छा करते हो तो यू ऑलवेज थिंक टू एक्सटेंड योर एरिया वेयर यू आर वर्किंग। मतलब यहाँ पे काम कर लो तो चाहते हो कि ये नाम आगे बढ़े, वो चीज़ हमेशा रहती है और ये हमारे माइंड में हमेशा से रही है कि हम लोग उस चीज़ को और आगे बढ़ाएं। लेट्स सी, आई होप फॉर द बेस्ट कि जब ही बहुत जल्द हम लोग अपने और कैफे 01 की ब्रांच यहाँ या फिर दूसरी सिटी में ओपन करें, ताकि एटलीस्ट जो चीज़ें हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ और लोग भी एक्सपीरियंस करें। Surely, we hope for the best.
one of the most promising features which I should comment upon, especially when I come to Almora, is that आपके कैफे में you have made it a kind of culture that एक बार food is served, तो there is always someone on the other to ask about the feedback for it. वो बहुत वही चीज़ें जो हमें Sets you apart from others. हाँ अलग भी करती, प्लस हमें एक्चुअली पता भी चलता है कि हम कहाँ पे हैं। हम यही चाहते हैं शुरुआत से ही कि वो जो क्वालिटी है वो है वो कंटिन्यू है, क्योंकि हर एक फूड ऑपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आप एम्बियंस दे सकते हो, बट फूड इज समथिंग विच जो एक क्वालिटी मेंटेन करता है। और स्पेशली मुकुल का हमेशा एक मोटो रहा है कि कस्टमर चाहे कैसा भी हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको उसकी क्वालिटी चेक होनी चाहिए, प्लस जो आपके कस्टमर आते हैं उनसे आप फीडबैक लेना जरूरी है। और यही चीज़ें हमने पिछले 13 साल में सीखी हैं जो हमने होटल में काम किया कि एक कस्टमर फीडबैक ही एक आपके एक अच्छे रनिंग बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। हम with these lines, I think we would like to sign off from here. And from our side, we would like to wish Mukul ji and Manoj ji the best. थैंक यू। एक छोटा सा एनेक्डोट है जो शेयर किया मेरा नहीं हुआ। 2022 की बात है। It was probably the last night for me when I was here on some kind of official visit. So I had a minor accident, and the best part which I liked about being here was that before being served food, तो यहाँ पे हमको first aid भी offer किया गया था। So even though somebody might dismiss it off as saying कि चलो वो तो कोई नहीं कर देगा, but for us who came here on that very hour, that day time, so I think that meant really something, and we would be very grateful for it. So with that, we would again like to wish you a very best in the future. सभी को नमस्कार। आज मैं यहाँ पे अल्मोड़ा की पावन भूमि में बैठा हूँ शंभू राणा जी के साथ। शंभू राणा जी से हमारी पहली मुलाकात सन 2021 में हुई थी और कुछ म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हुई थी। उसके बाद हमारे कुछ ऐसे पारस्परिक इक्वेशंस मिल गए कि मन करने लगा बार बार मिले। तो सबसे पहले मैं इनकी तारीफ़ आपको बता देता हूँ। शंभू राणा जी हिंदी के एक काफ़ी अच्छे लेखक हैं जो कि अल्मोड़ा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इनकी जो लेखनी है ये इन्होंने अभी एक ब्लॉग चैनल चल रहा है काफल ट्री, उसमें भी छपा करती है और उसके अलावा कुछ अन्य मैगजीन्स में भी छपा करती है। सबसे जो प्रमुख बात इनकी लेखनी में देखी जाती है वो कुमाऊँ के इलाके में जिस तरह से प्रेमचंद का हिंदी में एक स्थान माना जाता है, उसी प्रकार से इनकी लेखनी यहाँ के रोज़मर्रा की चीज़ें, छोटी छोटी बातें, उनका एक मार्मिक विवरण प्रस्तुत करती हैं। और ऐसे में देख के कहीं ना कहीं एक अपनापन की भावना है, वो स्पेशली कुमाऊनियों में वो लोग ओतप्रोत हो जाते हैं उन्हें देख के। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं शंभू जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो चंद एक बातें हम लोगों को बताएं। तो शंभू जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो लिखने का प्रेरणा स्रोत है और सबसे पहले जो आपने लिखने की शुरुआत की थी उससे लेकर के आज तक का सफ़र, ये कैसे शुरू हुआ और आज जहाँ पर आप हैं वो आपने जो ये दूरी तय की है लंबे सालों की, उसमें क्या क्या रहा, वो मैं निवेदन करूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं। लिखने की शुरुआत तो ऐसा है कि पढ़ने से हुई थी बेसिकली। पहले पढ़ा, फिर थोड़ा, फिर कुछ समझ में आने लगा, फिर कुछ नकल टाइप की कोशिश करता है आदमी, कुछ लिखता है, फिर कुछ ऐसे ही कुछ बनता है। तो यहाँ तक फिर थोड़ा जो भी आप लोग समझते हैं, मैं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता उसको अपने लिखे को। तो यही है, और बहुत कोई ऐसी भारी भरकम चीज़ भी नहीं लिखी, ऐसी छोटा मोटा जो भी देखा। अब प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा यही कि आप जो रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं, कोई करैक्टर देखते हैं, कोई घटना देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, उसी चीज़ें पैदा होती हैं और कोई नई चीज़ तो होती नहीं है साहित्य में। रोज़मर्रा का ही वो है जो उसी का विवरण होता है। कहने का तरीका अलग अलग है अपना। हाँ जी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि चीज़ों को देखना और समझना एक अलग बात होती है और उनको शब्दों में व्यक्त करना ये अपने आप में एक कला है जो बहुत कम लोगों में देखी जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ आपने बताई है अपने लेखनी के द्वारा, ये हम लोग जैसे आज पढ़ते रहते हैं बीच बीच में, कुछ लेखक हैं ऐसे हिंदी के
जो प्रमुख साहित्यकारों में माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो लेखनी की शैली है उससे ऐसा लगता है कि काफ़ी मैच करती हैं चीज़ें, तो हमें देख के और भी अच्छा लगता है। और क्योंकि जो भी घटनाएं उसमें दिखाई जाती हैं, दर्शाई जाती हैं, उनकी पृष्ठभूमि कुमाऊं की होती है। आपके चाहे वो बचपन के दोस्त हों जिनके ऊपर हमने एक लेख आपका पढ़ा था, या फिर आपके पड़ोस के कोई लोग हों जिनके ऊपर आपने कुछ लिखा हो, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पढ़ के बड़ा अच्छा सा अनुभव होता है। हम उसके लिए तो मतलब हमेशा से ही ऋणी रहेंगे कि आप लिखते रहते हैं। मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि अभी तक जो आपकी लेखनी है उनका प्रकाशन कहाँ पर हो चुका है? हाँ, ये एक तो शुरुआत हुई थी बहुत पहले सन 1988 से, एक अमर उजाला में कहानी छपी थी। उसके बाद फिर कहीं कुछ नहीं छप पाया ऐसा। फिर नैनीताल समाचार के संपर्क में आया तो वहाँ मैंने नौकरी भी की, फिर ज़्यादातर वहीं छपा है। उसके बाद कुछ काफल ट्री है, एक सत्याग्रह चलता था, एक ऐसे न्यूज पोर्टल था वो, वहाँ काफ़ी कुछ था, तो बंद हो गया मेरे ख्याल से। और काफल ट्री में काफ़ी है, कुछ पुराना भी उठा लेते हैं वो लोग, कुछ ब्लॉगर मतलब ये यूट्यूबर भी कर लेते हैं, पुराना कहानियाँ वानी पढ़ लेते हैं मेरी। तो यही सब है, बहुत ज़्यादा लिखा नहीं मैंने, वैसे विविधता नहीं है मतलब उसमें। और जो मैं सोचता हूँ कि बड़े आदमी के लिए नहीं लिख करके छोटे आदमी के लिए लिखा जाए, जो सब सड़क में बैठा हुआ जो मोची है, अगर उसके सब समझ में बात आ रही है तो ये उसके साथ सकता है। कोई बड़ा नामवर आदमी है, मतलब बड़ी यूनिवर्सिटी का वो है, प्रोफेसर है, कोई बड़ा आदमी है, वो समझ रहा, वो तारीफ कर रहा, मैं उसको बड़ी बात नहीं समझता हूँ। एक आम आदमी को अगर लगे कि हाँ ये मेरी समझ में आया हो तो वो बड़ी बात है। तो भाषा वही होनी चाहिए हमेशा, कि जिसके लिए आदमी को कभी डिक्शनरी न देखनी पड़ेगी, ये शब्द क्या है, समझ में आना चाहिए सब, वही भाषा होनी चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूँ। मतलब आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अगर आने वाले समय में यहाँ से कुमाऊं के इलाके से कोई उभरते हुए लेखक जो भी कोई हो, यदि हम आपसे ये आग्रह करें कि कुछ उनके लिए संदेश हो या कोई चीज़ सोच जो आप उनके लिए रखते हो आगे के समय में, कि बदलते समय के परिदृश्य को देखते हुए, पहले के समय में आज में काफ़ी अंतर आया है, जैसा आप देखते ही आ रहे हैं इतने सालों से। प्लेन्स के इलाकों में वहाँ ज़्यादा होता है कि लोगों को आस पड़ोस के जो रहने वाले होते हैं उनसे थोड़ा सा मतलब अब उतना कम होने लगा है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं पहाड़ में ये चीज़ें किसी रूप में आ रही हैं, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आप मतलब जो आने वाले हमारे उभरते लेखक हैं उनको क्या अगर कुछ संदेश देना चाहेंगे तो क्या रहेगा? देखिए, नए आदमी को जो लिखने वाले हैं उनको तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पढ़ना चाहिए। जो भी पढ़ पाओ आप, जितना पढ़ पाओ पहले पढ़ो, लिखने की जल्दबाजी मत करो। आप पढ़ेंगे, सब चीज़ पढ़ेंगे, जो विविधता कौन चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आपको फिर समझ में आएंगी चीज़ें, लिखने का भी तमीज में आएगा, चीज़ों को देखने का भी आपका नज़रिया बनेगा। तो यही सब आप करिए, वो खुद ब खुद विकसित होता जाता है। कोई किसी को ऐसा रेडीमेड बता नहीं सकता मेरे ख्याल से। कुछ बस यही बेसिक चीज़ है लिखने में, तो पढ़िए आप बस, और देखिए, जो ऑब्जर्व करिए ढंग से, मतलब चीज़ें अपने आसपास उसको समझना अपनी बनाए रखिए। यही है। और तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और आशा करेंगे कि ऐसे ही मिलते रहें। जरूर 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 जरूर। Moving along in the series of Almora, I have got you to Ramsey Inter College, which is a very famous school from Almora. As the board says, it has been established since 1871. फिलहाल यहाँ पे इसके अंदर उत्तराखंड ओपन योगा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2023 चल रही है, जो कि 3rd से लेकर के 5th तक है। अल्मोड़ा के लाला बाजार का जिक्र मोहन उप्रेती जी ने अपने सॉन्ग बेडूपा को बारामासा में भी किया था। कुछ एक सांस्कृतिक धरोहर जो कुमाऊं की मानी जाती है। वो आपको यहाँ देख सकती हैं। ये एक छोर से शुरू होता है, दूसरे छोर पे ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल सीधी रेखा में है। यहाँ पे गाड़ी लाना लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। ये उन इलाकों में से है जिसको कि अल्मोड़ा की धरोहर में से माना जा सकता है। अल्मोड़ा की लाल
बजारा अलमोड़ा की लाल बजारा का फल पाको छेला मेरी छेला। और घूमते घामते हम ये लोहे का शेर पर आ चुके हैं। कहा था ना अल्मोड़ा में इनकी भी कमी नहीं है और हर एक दुकान के पास लगभग आपको एक लॉयल मिल जाएगा। काफल ठीक पीछे आप देख सकते हैं अल्मोड़ा की प्रसिद्ध मिठाइयों की दुकान मोहन सिंह खीम सिंह रौतेला जी की। और आपको वहाँ पर भीड़ देख के समझ में आ गया होगा कि कितनी ज़्यादा डिमांड कर रही है, कितने वर्षों से ये दुकान यहाँ पर स्थापित है। अभी हम हैं अल्मोड़ा की खजांची मोहल्ला खजांची बाजार में। तो आप इस घर को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 1926 का ये घर बना हुआ है। एंड दिस मार्केट इज बेसिकली ओन बाय ज्वेलर्स। एज यू कैन सी खजांची मोहल्ला एंड द कलरफुल हाउसेस और है। शाह और चौधरी फैमिली क्लैन रहा है अल्मोड़ा के जो पूर्वज रहे हैं, उन लोगों ने सुंदर खजांची मोहल्ले को बनाया था। अल्मोड़े की लाल बजारा अल्मोड़े की लाल बजारा नरणी पाथरे की सीढ़ी मेरी छैला नरणी पाथरे की सीढ़ी